Thank you for all your prayers. आप सभी के प्रार्थना के लिए धन्यवाद। About 2 weeks back, I had a small operation for my eye, मैं आंखों का थोड़ा सा सर्जरी हुआ 2 हफ्ते पहले। but I have to go in for a cataract. अब मेरा कैटरेक्ट का जो ऑपरेशन होना है, So as the age goes up, जैसे slowly things get deteriorating. जैसे ही उम्र बढ़ता जाता है, थोड़ा माहौल खराब होता जाता है। So you need to do a lot of servicing. और बहुत सारी सर्विस करने की आवश्यकता है। So slowly and slowly, the Lord will help in all that we do. आहिस्ता आहिस्ता प्रभु हमें मदद किया करता रहेगा। And therefore we need the prayers of saints for each other. इसलिए हम एक दूसरे के लिए हमको संतों की प्रार्थना की अनिवार्य है। It's very good that the medical has progressed so much. ये जो मेडिकल है, जो चिकित्सा है, उसमें काफी प्रोग्रेस उन्नति हुई है। We are able to do kidney transplant. We are able to do transplant of body parts. और आप अपने शरीर के पार्ट्स को भी, अंग को भी दूसरे को दिया जा सकता है। So the Lord has somehow given such wonderful provisions for people to get healed. प्रभु ने ऐसे अद्भुत प्रोविजन दिया है, प्रलोभन बनाया है कि हम चंगाई हो सकें। Moses had a sudden loss of memory, unawares. ऐसे अचानक हमारे भाई मोसेस के जो याद था थोड़ी खो गई। You never know what is going on in the body inside. हमारे अंदर क्या हो रहा है हमको पता ही नहीं चलता। Only when something happens, then you realize that something has gone wrong. जब आपको कुछ होता है तभी पता चलता है कि ओहो कुछ तो हुआ है अंदर। By God's grace, he was taken to the hospital and then they have given some treatment and now he is all right. उनको हॉस्पिटल लिया गया, उनको ट्रीटमेंट दिया गया और प्रभु के अनुग्रह से वो ठीक है अभी। So in a fraction of a second, the entire family gets disturbed. छोटी सी समय के अंतराल में पूरे परिवार गड़बड़ी में आ जाती है। We may all look hale and healthy from the outside, बाहर दिखने में हम लोग बड़े चंगे दिखे, but inside what is happening we do not know. लेकिन अंदर क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता। And therefore in the worship time it was reminded to us, इसलिए आराधना के समय में हमें ये याद दिलाया गया, the grave cannot praise thee, ताकि कब्र आपको प्रशंसा नहीं कर सकता, death cannot celebrate thee, मृत्यु आपकी प्रशंसा नहीं कर they सकता, that go down into the pit cannot hope for the truth. जो अंदर चले जाते हैं कब्र में वो सत्य की आशा नहीं कर सकते। It is only the living, only they can praise the Lord. इसे जो जीवित हैं सिर्फ जीवित ही परमेश्वर की प्रशंसा कर सकते हैं। Thank God for all of God's children who come to God's house to worship the Lord. प्रभु के धन्यवाद हो जैसे प्रभु के दिन में प्रभु के लोग उपासना करने के लिए भवन में आते हैं। It is a wonderful opportunity. ये अद्भुत मौका है That in the midst of the congregation you open your mouth and you worship the true and living God. ताकि समुदाय के बीच में आपने मुंह खोल के आप जीवित सत्य परमेश्वर की प्रशंसा करें। Never ever hesitate to open your mouth to worship the Lord. प्रभु को आराधना चढ़ाने में मुंह खोलने में ऐसा संकोच ना करें। I keep longing to hear the worship of saints. मैं जो प्रभु के लोग जब आराधना करते हैं उसको मैं सुनना चाहता हूँ। But I often keep listening to those people who have been worshiping all the time. लेकिन जो लोग हमेशा ही उपासना चला रहे हैं उनके भी मैं सुन रहा हूँ। But those who are not worshiping, the Lord help them that they should worship. अभी तक जिन्होंने आराधना नहीं चढ़ाया, प्रभु सहायता करे आपको प्रभु उपासना चढ़ाएं। I wish we could close the Sunday service with just the worship service. मैं ऐसे मानो मैं चाहता कि ये जो संडे का सेवा है सिर्फ आराधना की सेवा हो। All of us should worship the Lord. सब लोग को आराधना चढ़ाना है। We have very limited time. हम लोग को बहुत छोटा समय है and therefore we restrict. इसलिए हमको रोकना पड़ता है। It pains us to stop in between. हमें दुख होता है कि आपको रोकने के लिए। There are many who want to worship. बहुत सारे ऐसे हैं जो आराधना करना चाहते हैं, but we are not able to give time. लेकिन समय हम दे नहीं पाते। Therefore, while you are at home also during the week, please worship the Lord. इसलिए जब तक आपको समय मिले हफ्ता भर आप आराधना प्रभु को जरूर चढ़ाएं। I often keep hearing messages, Brother Baksing also saying that if you want to grow very fast spiritually, मैं अपने समाज में कहता हूँ, ब्रदर भक्त सिंह भी बार बार कहते हैं कि अगर आत्मिक रूप में बढ़ना चाहते हैं, you worship the Lord. आपको आराधना उपासना करना है। The more you worship Him, जितना ज्यादा आप उसकी उपासना करेंगे, the more you will get to know Him. उतने ही ज्यादा आप प्रभु को जान पाएंगे। And the more you will receive power to walk in His ways. इसलिए उतने ही ज्यादा आपको सामर्थ्य मिलेगा कि उसके चरण मार्ग में चले। The Spirit of God will empower you. प्रभु की आत्मा आपको शक्ति देगा। Somebody while giving the Bible, somebody had written. जब बाइबल दिया था किसी को, he had written on the Bible. बाइबल में लिखा था, this book will keep you away from sin.
ये जो किताब है आपको पाप से दूर रखेगा, or sin will keep you away from this book. और या तो पाप आपको इस किताब से दूर रखेगा। And therefore, constantly read the word of God. इसलिए लगातार आप प्रभु की वचन पढ़ा करें, Do not neglect it. आप उसको ऐसे तिरस्कार न करें। If you are not able to read, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, listen to it. आप सुनिए। You've got wonderful provisions. आजकल बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, The Lord help us. प्रभु सहायता करे। We'll see Genesis chapter 22, जेनेसिस उत्पत्ति 22 अध्याय verses 1 to 14. 1 से 14 पद, उत्पत्ति 22 अध्याय 1 से 14 पद, 24 पद नंबर 24 पे है। We'll read it alternatively. Genesis chapter 22, verses 1 to 14. उत्पत्ति 22 अध्याय 114 पद में एक पढ़ रहा हूँ, आप दो पढ़ लीजिए इसी तरफ से, बारी बारी हम 14 तक पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। And he said, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I tell thee of. अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son, and he took the fire and a sand and a knife, and they went both of them together. इसाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? And Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। And he said, lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him, for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son. तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ। अतः अब्राहम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं एक और सुंदर अवसर के लिए कि हम प्रभु इस रीति से आपके भवन में बैठ करके प्रभु आपके वचन में मनन करें। प्रभु, मैं इस लायक नहीं, ना इस योग्य हूँ कि प्रभु यहाँ पर खड़े होकर के आपके संदेश को दूं। आप अपने बहुमूल्य लहू के छिड़काव के द्वारा प्रभु मुझे धोएं, शुद्ध करें, पवित्र करें और प्रभु बोलने के लिए शब्द और उच्चारण दे। जितने प्रभु भवन में हैं सबों को आप अपने अनुग्रह में ढांक के रखें और प्रभु हम सबों को आपके मधुर धीमी आवाज को, आपकी जीवित वचनों को सुनने में मदद करें। भटकते हुए विचारों को प्रभु आप अपने में केंद्रित रखें। प्यारे प्रभु, अनुवाद में मदद करें और प्रभु हम सबों को आपके जीवित वचनों के द्वारा प्रभु जो दौधारी तलवार के समान है, कुछ न कुछ सीख प्रभु हम सबके जो शिक्षा हमें मिलनी चाहिए प्रभु आप हमें पहुंचाए। अब प्रभु मुझको भी केवल एक माउथपीस के जैसे प्रभु इस्तेमाल करें, तमाम शारीरिकता को दूर करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। There is a wonderful passage that we have all read. ये अद्भुत एक रोचकमय एक अध्याय है जो हमने पढ़ा।
and we are familiar with this. और हम इनको जाना पहचाना हमारा भाग है। We'll just read verse 12 again. हम 12 पद को इस बार फिर पढ़ेंगे। The second portion says, दूसरा भाग ये कहता है, For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। Now I know that you fear God. इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर की भय मानता है। Now I would like all of us to understand what is it that thing in our life by which it can be said, now I know that you fear God. अब हम सब दोनों ये ध्यान दें कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ क्या है जो हमें देख के प्रभु कहे कि हम, मुझे पता है अब तू मेरा भय मानता है। By what thing that you do or you live or you behave or you react, that people will know that you fear God. जिस तरह के बर्ताव हम करते हैं, सोचते हैं, चलते हैं, ताकि लोगों को पता चले हम परमेश्वर की भय मानते हैं। We are living in this world as testimonies of the work which Christ has done in our lives. हम इस जीवन में इसलिए जीवित हैं कि ताकि जो हम साक्षी देने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन में किया। Now, if our testimony is not such that people can say, now I know that this is a child of God. जब हमारे जीवन में ऐसे साक्षी नहीं है कि जब लोग नहीं कह सकते कि ये प्रभु का पुत्र है, प्रभु का भय मानता है। Understand that this person is a man of God, is a child of God. अब मैं जानता हूं कि ये परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर के भय मानता है। What are those wonderful qualities, that traits, that characteristics that we need to practice in our life? हमारे पास ऐसे कौन से चरित्र, गुण और लगन होनी चाहिए जो हम जीवन में ऐसे उसको चल सके। It is necessary that by the grace of God, whatever the Lord teaches us, we may be able to practice it. ये अनिवार्य है कि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा जो भी हमें बाइबल सिखाता है हम उस पे चलें। I love this phrase, now I know that you fear God. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भाग, ये कहता है कि मुझे अब पता चला है तू परमेश्वर की भय मानता है। When was it said? कब कहा गया? When Abraham was about to slay his only son. जब वो अपने पुत्र को, खुद का पुत्र को मारने वाला था। When he was willing to sacrifice his son as God had told him. वो अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाने वाला था जैसे परमेश्वर ने उसको कहा था। And because he was obedient, क्योंकि वो आज्ञाकारी रहा, the Lord had blessed him. प्रभु ने उनको आशीष दिया। Let us read verses 15, 16, 17 and 18. 15, 16, 17 और 18। Brother will read it in Hindi. 22 अध्याय 15, 16, 17, 18। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राम को पुकार कर कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये यहाँ शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किन्नों के समान अनगिनत बनाऊंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। Because thou hast obeyed my voice. क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। Because you have been obedient to my voice, I am pleased to bless you. क्योंकि तूने मेरी बात मानी है इसलिए मैं तुझे आशीष करूंगा। Because thou hast done this thing and hast not withheld thine only son Isaac to offer, I am calling you again. इसलिए तूने अपने एकमात्र पुत्र को बलिदान चढ़ाने के लिए तू मान गया, अब मैं तुझे आशीष करूंगा। Of my own self I am calling you again. अब मैं अपने आप से मैं तेरे को बुला रहा हूँ। And I'm making a covenant with you. और मैं तेरे साथ एक वाचा बांध रहा हूँ। That in blessing I will bless thee. आशीष में आशीष दूंगा। In multiplying I will multiply thee. मैं तेरे बढ़ाता जाऊंगा। The Lord is pleased when we are obedient. प्रभु बड़ा आनंदित खुशी होता है जब हम उनके लिए आज्ञाकारी बनते हैं। The Lord is mindful of our obedience. प्रभु हम कितना आज्ञाकारी है उसके वो देखता है। He is watching. वो देख रहा है। He is looking forward to. और वो आपको आगे देख रहा है। That how much you have heard his voice. कितना आपने उसकी आवाज को सुना। And how much you are obedient to his voice. और कितने उस आवाज को माना। Once you are obedient to his voice, जब आप एक बार उसकी आवाज को मानते हैं, the Lord of his own accord will be pleased to bless you.
और प्रभु खुद से आपको आशीष करना चाहेगा। It says the angel of the Lord came and called unto Abraham out of heaven the second time. और यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर के दूसरी बार उसके स्वर्ग से वो आया। Why? क्यों? He had done that which was pleasing to the Lord. क्योंकि अब्राहम ने ऐसा किया जो परमेश्वर को भला लगता। We should understand, Lord, what it is that you want me to do. हमें ये समझना है कि प्रभु क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। A similar expression we find in 1 Kings chapter 17. पहला राजा 17 अध्याय में हम देखते हैं। 1 Kings chapter 17 पहला राजा 17 अध्याय and verse 24. पहला राजा 17 अध्याय 24 पर, पेज नंबर 471 पे है। पहला राजा 17 अध्याय 24 पर। 1 Kings 17. 17 अध्याय 24 पर, पेज नंबर 436 पे है। स्त्री ने एलिय्याह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वो सच होता है। Now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord is in thy mouth is truth. अब इससे मैं जान गया कि तू यहोवा का परमेश्वर का जन है और यहोवा का वचन तेरे मुंह से निकलता है। Because of what this prophet had done, जो ये काम भविष्यवक्ता ने किया, he raised that Shunammite son to life, और वो मरे हुए उसके पुत्र को जीवित उसने किया, the widow's son, जो वो विधवी थी उसके बेटे को। this widow saw that, और उस विधवा ने उसको देखा that truly God dwells with him. उसने ये जाना कि सच में इस जन के साथ परमेश्वर वास करता है। He is a man of God. ये परमेश्वर का जन है। He prays to the Lord. ये परमेश्वर को प्रार्थना करता है। I lost my child, मैंने अपने बेटे को खो दिया, but he has brought life to him. लेकिन इसने उसमें जीवन डाल दिया, just because he speaks to God, क्योंकि वो परमेश्वर से बातें करता है। he calls upon the name of the Lord. वो परमेश्वर के नाम को पुकारता है। By this she could understand that he is a man of God. इसके तहत उस स्त्री जान गई कि ये परमेश्वर का जन है। Initially when they were about to die, जब वो शुरू में वो मरने को था, this widow and that little child, ये जो विधवा और उसके छोटे बेटे, in 1 Kings chapter 17, if you go home you can read it. जब पहली राजा 17 अध्याय जब आप घर पे जाएंगे इसको पढ़ें, there was just enough to have just one meal and die. उसके पास खाने सिर्फ एक पल का खाना ही था और वो मर जाते। But then the man of God said, लेकिन प्रभु के जन एलिय्याह ने कहा, you first give me bread, आप मुझे पहले अपना रोटी दो, and then the Lord will be with you. और तब प्रभु आपको सहायता करेगा। And as long as the Lord wanted, their bread and the oil never went away. लेकिन जब तक प्रभु ने नहीं चाहा, उनकी रोटी और उनका तेल खत्म ही नहीं हुआ। It was always overflowing. वो ज्यादा ही हो गया। It was just because of the man of God. ये सिर्फ उस परमेश्वर के जन के वजह से हुआ। He was obedient to God. क्योंकि वो परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी बना। He did exactly what the Lord wanted him to do. वो वही किया जो परमेश्वर चाहता था उसको करने को। For this we need to first learn to listen to the Lord. इसके लिए सबके लिए पहली बात हमें ये ज्ञान देना है, परमेश्वर को हम सुनना है। How do you listen to the Lord? प्रभु के कैसे हम सुनेंगे? Through the word with which he speaks to us. परमेश्वर के वचन के तहत हमसे बातें करेंगे। By his word he speaks to us. परमेश्वर के वचन से वो बातें करेंगे। And we communicate to him when we pray to him. और जब हम उससे प्रार्थना के तहत हम बात करते हैं। Why are we given promises? हमें प्रतिज्ञा क्यों दिया जाता है? So that we can claim those promises. ताकि हम उसको प्रतिज्ञा को हम दावी करें। Lord, this is your word given to me. प्रभु ये तो आपकी प्रतिज्ञा है, आपने मुझे दिया है। And I want you to fulfill it for me. और मैं चाहता हूँ कि आप उसको मेरे लिए पूरा करें। But for you to fulfill it for me, अगर आपको इसको पूरा करने के लिए, what are the conditions I need to comply with? मुझे क्या करना है? How should I live? मुझे कैसे जीना है? How should I be obedient to you? कैसे आज्ञाकारी मैं आपके लिए बन पाऊं? Then the Lord will bless. अब जाके प्रभु आपको आशीष देगा। The world will know. संसार जान जाएंगे। In the book of James, याकूब के पत्र में chapter 5, 5 अध्याय
याकूब के पत्री 5 अध्याय 321 पेज नंबर। Verse 13 says, "Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms." 322 और 13 पद, 5:13 याकूब। यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाएं। 14 and 15. 14-15 यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएंगे और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। Therefore, prayer of a servant of God is counted worthy. इसलिए प्राचीनों की जो प्रार्थना है वो योग्य ठहरा जाएगा। Verse 16 says, "The effectual fervent prayer of the righteous man availeth much." ये 16 पद में कहता है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता The है। effectual fervent prayer of the righteous man availeth much. धर्मी जन की प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। Many of them keep calling us at times for prayer. बहुत लोग हमें प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। We are happy to pray हम लोग आनंदित होते हैं प्रार्थना करने में, because we realize that the one who is calling knows God hears prayers. हाँ, इसलिए हमें पता चलता है कि जो हमें जिसको कॉल करते हैं उनको ये पता है कि प्रभु प्रार्थना सुनता है। They know the value of prayer. प्रार्थना की महत्व उनको पता है। They know that God hears our prayers. वो जानते हैं कि प्रभु प्रार्थना सुनता है, And therefore, children of God, इसलिए परमेश्वर के जन they pray to God. वो परमेश्वर के लिए के साथ प्रार्थना करते They हैं, worship God. वो परमेश्वर की उपासना करते हैं, And they practice what the Lord has taught them. और वो जो प्रभु सिखाता है वो उसके चलते हैं। The Lord will help you to become fruitful. प्रभु आपको फलवंत होने में मदद करेगा। So the world should know that, and they should be able to say, "Now I know that you are a child of God." इसलिए प्रभु लोग, संसार के लोग ये कह पाए कि मुझे पता है आप परमेश्वर के जन हो। Now let us turn to Judges chapter 13. वो आप ये न्यायकर्ता 13 अध्याय, न्यायों की पुस्तक, न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय, Judges 13. You can read verse 6 and verse 8. ये सुना। Judges chapter 13. न्यायों 13 अध्याय verses 6 and verses 8. पेज नंबर 311 पे है। न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय 6 पद और 8 पद, 6 से 8 पद। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भयोग्य था, और मैंने उससे न पूछा कि तू कहाँ का है, और उसने मुझे अपना नाम बताया। परंतु अब उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, इसलिए अब न तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वो लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। तब मानो ने यहोवा से ये विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का ये वो जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। So here we find a couple who do not have children. और यहाँ पे एक जोड़ी है जिसका बाल बच्चे नहीं हैं। So the angel of the Lord appears to Manoah, the husband. और परमेश्वर का जो स्वर्गदूत, उसका जो मनुआ, जो उसका हस्बैंड पति है, उस पे आके मिलता है and says that your wife and says that appeared, the angel of the Lord appeared to Manoah's wife. और जो मनुआ के पत्नी है उस पे आके एक परमेश्वर का स्वर्गदूत आया। See verse 3, 3 अध्याय 3 पद, 13 अध्याय 3 पद। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। So the angel of the Lord appeared to Manoah's wife. और मनुआ के
पत्नी जो स्त्री थी उसमें आके स्वर्गदूत आया saying that you shall bear a child. और उसने कहा कि तुमको एक पुत्र तुम जन्माएंगे। At that point of time, Manoah was not there. और उस समय मनुआ उसका पति नहीं था। So the wife tells the husband that this is what happened. इसलिए पत्नी जाके पति को बोलता है कि ऐसा हुआ है। And then the Manoah entreated the Lord that why don't you reveal thyself. इसलिए मनुआ ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तू हमें और बातें बता, so that he may come again ताकि वो दोबारा आए and I may be able to listen and understand. और मैं इसको खुद सुनूं और समझ पाऊं। The Lord appears to his children to bless them. प्रभु अपने आप को अपने बच्चों के आगे प्रकट करता है आशीष देने के लिए। He chooses when and to whom he should bless. ये प्रभु चुनता है कि किसको और कब आशीषित करना है। So God's ways and means are something which is beyond human understanding. और प्रभु के कार्य और तरीके हमारे समझ से परे है। But it is our duty to constantly wait on the Lord. लेकिन हमारा कार्य है कि हम प्रभु के हमेशा बात जोड़ते रहें। Never get disheartened. और हम निरुत्साहित ना हो। Never get upset. और हम दुखित ना हो। The Lord knows everything concerning our life. हमारे जीवन से जो संबंधित सब कुछ प्रभु जानता है। He knows our very birth. हमारे जन्म को जानता है। He knows our life. हमारे जीवन को जानता है। And he knows the end of our life also. और हमारे जीवन के अंत को भी वो जानता है। All that the Lord desires is हमारे जो प्रभु चाहता है that we may know him, ताकि हम उनको जान पाए, we may hear him, उनको सुने, we may love him, और उनकी प्रेम करें, we may serve him. और उनकी सेवा करें। Now, how should this man of God be? ये प्रभु का जन कैसा होना है? See in 1 Timothy chapter 6. पहला तिमोथी 6 अध्याय। पहला तिमोथी 6 अध्याय पेज नंबर 292 नया नियम पे। पहला तिमोथी 6 अध्याय। See verse 11. 11 पद। पहला तिमोथी 6:11 पेज नंबर 293। पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। And verse 12. विश्वास की 12 पद। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुतों के गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। Now he says, Paul tells Timothy, पौल तिमोथी को कहता है, O man of God, हे परमेश्वर के जन, flee all these things. इस सब बातों से भाग, Follow after righteousness, और तो धर्म, godliness, भक्ति, faith, विश्वास, love, प्रेम, patience and meekness. धीरज और नम्रता का पीछा कर। He says these are the qualities that you need to follow after. ये जो स्वभाव है इसके पीछा तू कर। Try to accumulate as much as possible these wonderful traits. जितना ये असल बातें हैं अपने जीवन पे तू ले ले। And be content with whatever the Lord has blessed you with. और जो प्रभु ने आशीष किया उसमें तू संतोष रहे। He says in verse 10, 10 पद में, the love of money is the root of all evil. क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। Which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. 10 पद। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। Money is not evil. पैसा स्वयं में बुरा नहीं है, but the love for money is what is a problem. लेकिन पैसों से प्रेम ये समस्या है। See verse 6 and 7. 6 और 7 पद, 6, 7 and 8. 6, 7 और 8 पद 6 अध्याय। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। So let us learn to be content and satisfied with whatever the Lord has blessed us. इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है उसमें संतोष रहना सीखें। So Paul was telling Timothy, flee all such things which are going to spoil you. इसलिए पौल तिमोथी को कहता है ये सारी बातों से तू भाग जो तुझे खराब कर सकता है। But these are certain characters
behavior patterns which you need to hold on and follow after. ऐसे कुछ यहाँ पे चरित्र हैं, गुण हैं जो आपको पकड़े रहना है। The Spirit of God will enable you. परमेश्वर की आत्मा आपको सहायता पहुंचाएगा। Now let us see 2 Timothy 3:17. 2 तिमोथी 3 अध्याय के 17 पद। 2 तिमोथी यहाँ पे इसे आगे 3 अध्याय के 17 पद। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Now Paul is wanting Timothy that the man of God should be perfect. एक ही परमेश्वर का जन सिद्ध हो। Now for that perfection we need to keep progressing. उस सिद्धता के लिए हमें उन्नति करते जाना है, बढ़ते जाना है। Whatever you were there till last week, आप पिछले हफ्ता तक आप थे। now the following week, what is it that you will get closer to the Lord? और आने वाले हफ्ते में क्या चीज है जो आप प्रभु को और अधिक प्रभु के साथ ले जाएगा? Or reaching on unto perfection. और सिद्धताई की ओर आपको लिए चलेगा। You should long for that. आप उसके लिए चाहें। God's purposes प्रभु के उद्देश्य ये है that we may be conformed to the image of His Son Jesus Christ. ताकि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रूप में रूपांतर होते जाएं। And therefore we need to constantly upgrade ourselves to be into the likeness of His Son. इसलिए हमें हमेशा अपने आप को कोशिश करना है कि हम उसके पुत्र के रूप में रूपांतर हों। It is possible by the word of God ये तभी मुमकिन होगा जब हम प्रभु के वचन अनुसार चलेंगे and the Spirit of God. और प्रभु के आत्मा के अनुसार। Now in order to help the world around which we live tell that this is a child of God, हमारे संसार के लोग को ये कह पाए कि ये परमेश्वर के जन हैं, we need to first love the Lord. उससे पहले हमें प्रभु से प्रेम करना है। And the first commandments, Matthew 6:33. मत्ती 6 अध्याय के 33 में जो पहला आज्ञा है, seek ye first the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य की खोजी करो। So a child of God should first love the Lord. तो परमेश्वर के जन पहले परमेश्वर से प्रेम रखना है। This is the first and foremost quality which should be evident in a child of God. ये जो पहला और अनिवार्य चीज है जो परमेश्वर के जन के पास होना है। Seek ye first the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य की खोजी करो। And all these things shall be added unto और you. ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। Let us learn to increase our love for the Lord. इसलिए हम सीखें कि हम अपने प्रेम को प्रभु के लिए कैसे बढ़ाएं। See Matthew chapter 10. मत्ती 10 अध्याय, Matthew chapter 10 verse 37 to 39. मत्ती 10 अध्याय 37, 38 और 39 पर 17 पेज नंबर पे नया नियम। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपने प्राण खोता है वो उसे पाएगा। So the love for the Lord your God should be much beyond all these things. इसलिए आपके परमेश्वर प्रति का जो प्रेम है इन सब से ऊपर होना है। More than the father and the mother and the children and the husband and the wife should be, the first love should be to the Lord. अपने पिता माता मम्मी डैडी पति सबसे ऊपर होना है। Let us learn, O Lord, how can I reach that level? इसलिए हम सीखें और प्रार्थना करें प्रभु हम उस स्तर तक कैसे पहुंचे। That is the first quality which is required for a child of God. ये पहला अनिवार्य एक गुण है जो परमेश्वर के बच्चे में होना है। The love for the Lord. परमेश्वर के प्रति प्रेम। Wherever and however you can get it, please do it. जैसे भी जिस तरीके से आप कर पाए आप करें। It is very, very essential. ये बड़ी अनिवार्य है। The things around us are totally dark. हमारे आमने सामने जो चीजें सारे अंधकार हैं। The world is getting more and more corrupt. और वो और संसार और भ्रष्ट होता जा रहा है। So what should we do? हमें क्या करना है? We need to be careful. हमें सतर्क रहना है। How can you be careful? हमें सतर्क कैसे रह पाएंगे? When you are filled with the Spirit of God. जब आप परमेश्वर के आत्मा से भरे रहेंगे। You will desire to read the Word of God. और आपको प्रभु का वचन
पढ़ने में रुचि You होगा will desire to pray. और आपको प्रार्थना करने में रुचि होगा You will delight to worship the Lord. और आप प्रभु को आराधना उपासना चढ़ाने में आप And you will आनंदित होगे delight to meditate on the word of God. और प्रभु के वचन अध्ययन करने में आप And you will long for fellowship with godly और children. प्रभु के लोगों के संगति का आप रुचि रखेंगे। Once you start doing this, हम जब एक किया करने लगेंगे then you learn to submit yourself to the Lord. तब हम प्रभु में समर्पित होना हम सीखेंगे। See Romans chapter 12. रोमन 12 अध्याय Romans chapter 12, रोमी 12 अध्याय verses 1 and 2. 1 और 2 पद। रोमी 12 अध्याय 221 पेज नंबर पे नया नियम। रोमी 12 1 और 2। इसलिए ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के संगत न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। It is a continuous process of transforming and renewing your mind. ये अपने मन की भावना को ये एक तरीका है, आहिस्ता आहिस्ता होने वाली चीज है। It is a regular process. It has to keep on happening. और ये होते जाना है That your mind is transformed. ताकि आपके मन आप बदलता जाए। Because it is this mind that Satan wants to capture. ताकि ये मन को ही ये मस्तिष्क को वो शैतान उसको लेना चाहता है। He wants to capture your thought process. आपको सोच विचार को वो लेना चाहता है। You know what Satan is doing? शैतान क्या कर रहा है? He is trying to capture your mind. आपके मन मस्तिष्क को आपको वो कैप्चर करना चाहता है, लेना चाहता है। Your very thought process, सोच विचार को he wants to capture. आपके जो सोच विचार है उसको वो केंद्रित करना चाहता है। So you go to Instagram. जब आप इंस्टाग्राम में जाएंगे और you go to other social media, और आप ऐसे सोशल मीडिया में जाएंगे, it will keep on dragging you. और वो आप उसमें घुसते ही चले जाएंगे। And then whatever you desire, it will give you. और आप जो चाहते हो वो वहां पे आ जाएगा। There will be so many choices. और बहुत सारे आपके पास वहां पे है। And then by the time you come to know exactly what you want, और जब तक आप वहां पे आप जो चाहते हो वहां पे आए, you have spent a lot of time. और उस टाइम पता चलता है बहुत समय आपने बिता दिया। Because that is how the Satan is trying to capture our very thought process. इसी तरह से आहिस्ता तरह से ये शैतान हमारे विचार को ऐसे घुमाना चाहता, पकड़ना चाहता है। So we need to be careful on how we use the gadgets which God has given us for our good. We do not get captivated by it. इसलिए जो यंत्र ये प्रभु ने हमें दिया है, इसको हम कैसे चलाएं, हम बड़े सावधानी बरतें। There was a time when mobiles were not there. एक समय जब मोबाइल नहीं था। So we know that at a particular time our children or parents or they'll come back from office or whatever it is. हम उन्हें पता था ये समय में हमारे माता पिता हमारे बच्चे घर वापस आएंगे। So we never used to bother. हमें कोई समय कुछ होता ही नहीं था। But now what has happened? लेकिन आजकल क्या हो रहा है? This mobile has become a discomfort. ये मोबाइल ही ऐसे असमंजस है, ये जिसका It has become a problem. ये समस्या हो गई। You constantly call. आप कॉल करते जाते हैं, and the one who calls also is troubled and the one who is called also is troubled. जो कॉल करता है वो भी समस्या में पड़ जाता है और जो कॉल रिसीव करता है लेता है उसको भी समस्या। He looks at the call और कॉल वैसे कॉल देख रहा है वो। He says who is calling? कौन कॉल कर रहा है मुझे? He just says oh. अरे यार ये इसने कॉल कर दिया। They get tired. और वो थक जाते हैं। Why are they calling? क्यों कॉल कर रहे हैं? It was meant for your good. वो आपके भलाई के लिए था। It has become a headache. और अब तो आपका सरदर्द बन गया है। The office keeps troubling you. ऑफिस वाले कॉल करते हैं। It is not work from home, it is work all the time. वर्क फ्रॉम होम नहीं है, वर्क तो हमेशा ही करना है। Whether you are in the office or at home, आप ऑफिस में हो घर पे हो, the mobile is forcing you to do some work. और आपका मोबाइल ही आपको काम करने लगा रहा है। Because the office keeps calling you. क्योंकि ऑफिस आपको बार बार कॉल कर रहे हैं। The messages come to you. मैसेजेस आता है। In my office, मेरे ऑफिस में one employee said, एक एम्प्लॉय ने एक काम, an officer said, बोला, I do not want an official mobile. अब मुझे ऑफिशियल के जो ऑफिस के मोबाइल नहीं चाहिए। Because if I take this mobile, क्योंकि जब मैं एक ऑफिस के जो मोबाइल है मैं ले लेता हूँ, I'll have to receive the calls. मुझे कॉल उठाना है, and then I'll have to reply it.
and I have to reply. और मुझे उसके उत्तर देना है। So the office gave him a reply. जो ऑफिसर जो रिप्लाई उसको मिला, This is one of the service condition. और ये काम करने का एक अनिवार्य है। So you have to take this mobile. आपको ये मोबाइल तो लेना ही लेना है, Friends will take a disciplinary action. और क्योंकि आपको आपके ऊपर एक्शन लिया, So it has become a service condition. और ये जो काम करने का जरिया ये अनिवार्य बन गया है। So the life is becoming complicated. इसलिए हमारे जीवन में ऐसे मुश्किल हो रहा है। So we need to be very careful इसलिए हमें सावधानी बरतना है as to how much we are able to submit ourselves to the Lord. कितना हम प्रभु में अपने आप को समर्पित करें। Keep our minds transformed, renewed day by day. हमारे मन मस्तिष्क को हर दिन नया होने जाना है। You need to have a desire to grow spiritually. हमें अपने आप में होना है कि मैं प्रभु के आत्मिक तौर से बढ़ूं। In this world, we want to grow. संसार में हम बढ़ना चाहते हैं। A man who does not have a vehicle wants to buy a cycle. A man who does not have a vehicle wants to buy a cycle. जिसका वाहन नहीं है वो साइकिल खरीदना चाहता है। After getting a cycle, he wants a scooter. और वो साइकिल खरीदने के बाद वो स्कूटर खरीदना चाहता है। After scooter, he wants a car. और स्कूटर के बाद वो कार खरीदना चाहता है। He wants to grow. वो उन्नति करना चाहता है। Nothing wrong in growing. उसमें गलत बात नहीं है। Nothing wrong in prosperity. उसमें उन्नति करना बड़ी गलत बात नहीं है। But do we have that same hunger for our spiritual growth? लेकिन क्या हमारे वही जिज्ञासा है हम आत्मिक तौर में बढ़ने के लिए? We need to consider. हमें ये ध्यान देना है। Lord, is my desire to grow spiritually the same desire that I have for physical growth? प्रभु, जिस तरीके से मैं शारीरिक तौर से उन्नति करना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ, क्या मेरा वही इच्छा है प्रभु मैं उतनी तरह से आत्मिक भी उन्नति करूं? The comfort level has become so much. हमें इतना आरामदायक जीवन जीने का हो गया है। And then the office has become so much demanding. और ऑफिस इतना हमें ले मानता है ऑफिस, that there is just one Sunday and then that is also being taken away as a burden for those who do not enjoy coming to the house of God. और एक ही दिन इतवार हमें छुट्टी मिलता है, वो दिन वो लोग कई लोग प्रभु के घर में आना नहीं चाहते। And they think it is a burden. और वो उनको लगता है कि ये बड़ा बोझ है। But David writes in Psalm 122 verse 1. दाऊद भजन संहिता 122 के 1 में लिखता है, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. भजन संहिता 122 का 1 पर, भजन संहिता 122 का पहला पद, पेज नंबर 751 पे है। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन में को चले, तब मैं आनंदित हुआ। Now is it a joy for us to go to the house of the Lord or it is a burden for us? क्या हमारे को प्रभु के घर में आना आनंद के कारण है या बोझ है? When we arrange a bus from Manesar, जब हम मानेसर से बस में आ रहे हैं, we put it in the group, हम ग्रुप में डालते हैं, and then to help people to know that on the first Sunday the bus is arranged. लोगों को बताते हैं कि पहले इतवार को महीने का वहाँ पे बस है। And sometimes our brother Bola feels such a big bus, he feels ashamed if there are just very few people coming. कभी कभी भोला भैया इतना बड़े बस को अरेंज करते हैं कि और दुख लगता है कि कुछ ही लोग आए हैं। The bus is empty. और बस खाली है। So he feels that people of God are desiring, paying money, they are not people of God coming. इतना पैसा दे के बस अरेंज किया जाता है, प्रभु के लोग क्यों नहीं आ रहे, उनको दुख लगता है। They desire to grow physically is more important than growing spiritually. उनके लिए शारीरिक तौर से बढ़ना आत्मिक रूप से बढ़ने में ज्यादा लगता है। So we keep telling people, please come. इसलिए हम लोगों को बताते हैं कि हम आया करें। We sometimes call. हम उनको कॉल करते हैं। Tell others also. हम बोलते हैं आपके और लोगों को भी बताओ, so that they may also come, ताकि वो भी आ पाए। Sometimes we send messages individually. हम व्यक्तिगत रूप से हम मैसेज भेजते हैं। And then such people they say they have called me, so I'll go. वो उनको लगता है उन्होंने मुझे बुला तो लिया, इसलिए मैं जा रहा हूँ। Just as when somebody calls somebody for a wedding, जब किसी को विवाह के लिए निमंत्रण दिया जाता है, you give an individual card, और उनके लिए कार्ड दिया जाता है, and then they say yes, let me see whether it is for the family or for me alone. वो देखते हैं कि आप पूरा परिवार को बुलाया कि मैं अकेले को बुलाया, and then they want to go, और वो जाना चाहते। But if it is a general card, और ये समुदाय के लिए जब कार्ड है, I have not been called, why should I go? हम बोलते हैं नहीं, मुझे तो बुलाया नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैं जाऊं क्यों? In the house of God, परमेश्वर के भवन पे there need not be any invitation for you. व्यक्तिगत रूप से कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं है।
You should long for coming to the house of God. आपको खुद ब खुद हमें होना है कि मैं परमेश्वर You को should have a desire. आपको इच्छा होना है। Sunday is a worship day. इतवार उपासना का दिन है। The day when we gather around the table आप परमेश्वर के टेबल के इर्द गिर्द हम इकट्ठा होते and हैं we partake in the table. और उससे हम भाग लेते हैं। Do not neglect it. आप इसको हल्के में ना लें, It is God's command. ये तो प्रभु की आज्ञा है। And we as his children, if we love the Lord, we need to be obedient. इसलिए जब हम प्रभु के बच्चे के होने के नाते हम उनसे प्रेम करते हैं कि उनके आगे पारी रहना है। Now the man of God, a child of God, needs also to be committed to the work of the Lord. इसलिए परमेश्वर के जन होते के नाते हम परमेश्वर के कार्य में भी हम ध्यान दें। We have heard a lot of messages. बहुत सारे संबंध हमने सुना। The sower went on sowing seeds. अब वो बीज बोने वाला बीज बोने चला गया। Unless the seed is not sown, where are you going to get any fruit? जब तक बीज बोया नहीं जाएगा को फल कैसे आएगा? Who are those who should sow the seeds? ये कौन है जो इस बीज को बोना है? We who have received it. हम लोग। We have received that seed. हाँ, हमने वो बीज लिया है। Our life is changed. हमारे जीवन बदल seeds now. अब हमारे बदले हुए जीवन है, हमें बीज को बोना है। All of us need to sow seed. हम सबको बीज बोना है। It is not your business to see whether it is a hard ground or a soft ground. ये आपका काम नहीं है कि कड़ा भूमि है या नरम भूमि है, ये आपका काम नहीं है। You only have to prayerfully give the word of God. आपको बड़े प्रार्थना सहित सिर्फ आपको वचन देने की आवश्यकता है। The Lord will bless it. प्रभु आशीष देगा। Let us turn to Luke chapter 6. लूका 16 अध्याय 6 अध्याय। लूका 6 अध्याय verses 30 to 34. 30 से 34 पर। लूका 16 अध्याय 30 से 34 पर। 6 अध्याय 30 से 34। 30 से 34। 6 अध्याय पेज नंबर 92। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वाले के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों की ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिरे पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। Verse 38 और 38 पर, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप में तुमने नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। 2 Corinthians chapter 9 2 कुरिन्थी 9 अध्याय 2 कुरिन्थी 9 अध्याय 6 to 9 6 से 9। 2 कुरिन्थी 9 अध्याय 6 से 9। ये पेज नंबर 252 पे 252 पे है। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। So we need to be constantly serving the Lord. इसलिए हमें हमेशा प्रभु की सेवा करना। In whatever the Lord has given us, जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है, let us be faithfully serving the Lord. आप विश्वासयोग्यता के साथ उसकी सेवा करें। The Lord will bless you abundantly प्रभु बहुतायत से आशीष देगा आपको as you serve the Lord. जैसे आप उसकी सेवा करेंगे। Serving could be anything. सेवा करना कुछ भी हो सकता है।
helping us in getting this place ready. ये हॉल को रेडी करने के लिए भी हो सकता है, And after that, closing time also, closing it properly. और सेवा के बाद इसको सब कुछ रैप करके बंद करने में भी होता है सेवा। And by your very coming to the house of the Lord, you're a joy to the house of God. और जब भी आप प्रभु के स्वयं में आते हैं तभी एक दूसरे के लिए आप आनंद का कारण बनते हैं। People look at one another. लोग एक दूसरे को देखते हैं, They rejoice और वो आनंदित रहते हैं that they're able to see you again. आपको वो दोबारा देख पाए। And the Lord is watching. और प्रभु ये सब बातें देख रहा है, And He is more pleased. और वो आनंदित है। He watches all of us. वो सबको देखता है। Now, when we do all this, जब ये सब हम करते हैं, we also need to be a little bit humble. और हमको और एक चीज है, हमें नम्र भी रहना है। Turn to Ephesians chapter 4. इफिसी 4 अध्याय, Ephesians chapter 4. इफिसी 4 अध्याय, पेज नंबर 267, 267 पे है। इफिसी 4 अध्याय, Let us read verse 2 and 3. 2 और 3 पद। इफिसी 4, 2 और 3 पद। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। In all lowliness and in all humility, सब नम्रता के साथ let us keep the unity of the Spirit. आप आत्मा की एकता रखने की यत्न करें। To have constant peace amongst ourselves. हमारे बीच में शांति बने रहे। For everyone, a different amount of grace is available. हर किसी को उसके हिसाब से अनुग्रह दिया गया है। See verse 7. 7 पद, 4 अध्याय के 7 पद। Ephesians 4:7. इफिसी 4:7। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। Grace is given to everybody according to the measure to which he loves the Lord. हाँ, हर एक को प्रभु ने अनुग्रह दिया है जितना वो प्रभु से प्रेम रखता है। So if you want to be recognized as a child of God, जैसे आप प्रभु के बच्चे के नाई आप जाना चाहते हैं। if the society needs to recognize, अगर आपके सोसाइटी आपको ये पहचाने के प्रभु के जन है, if your factory or the place of work needs to recognize, जहाँ पे फैक्ट्री आप काम करते हैं वहाँ के लोग आपको जानते हैं। you need to love the Lord as the scripture says. इस तब आप परमेश्वर को प्रेम करना है जैसा उसका वचन कहता है। You need to submit yourself. परमेश्वर पे समर्पित रहना है। You need to grow spiritually. और आत्मिक रूप से बढ़ना है। You need to serve the Lord in whatever way possible. और जैसे हो सके परमेश्वर की सेवा आप में भाग लेना है। And you need to be humble enough. और आपको दीनता नम्रता बनना है। And then you need to have the fear of God in abundance. आपके परमेश्वर का डर आपके जीवन में बहुत अच्छे होना है। The more the fear of God, जितना ही परमेश्वर का डर होता है, the more the wisdom of God, परमेश्वर को उतना ही ज्ञान आपको देता है। and the more knowledge, और मोर बुद्धि आपको देती है। and then you will enjoy the presence of God. तब आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। Now I know that you are a man of God. अब मुझे जान जाता हूँ कि तू परमेश्वर का जन है। Because you have given your only son to be offered on the ताकि तुमने अपने एकमात्र पुत्र को ना छोड़ा परमेश्वर को देने के लिए। He gave his all. वो सब कुछ उसने दिया। Abraham had only one son. अब्राहम का तो एक ही पुत्र था। And in his old age he got that son. वृद्ध काल में उसको उस पुत्र मिला था। The Lord gave him a son in old age. अब्राहम को वृद्ध काल में बुढ़ापे में एक बेटा का दान दिया। He must have enjoyed his son growing. उसने देखा होगा कि उस बालक को बढ़ते हुए। He must have said, Lord, you promised and you have given your promise. उसने वो प्रभु से कहा होगा, प्रभु तूने प्रतिज्ञा की और तूने प्रतिज्ञा को पूरा किया। But the giver had the right to take it back. लेकिन जो देने वाला था उसका ये हक बनता था कि उससे छीन लिया जाए। So he said, give me your son as a sacrifice. इसलिए प्रभु ने बोला कि तू मेरा बेटा दे दे। He was immediately obedient to go and sacrifice his son. और तुरंत अब्राहम आज्ञाकारी हो गया उसको बलि चढ़ाने के लिए। That is the element of our love to the Lord should be. इस हद तक हमें प्रभु को प्रेम रखना है। He was obedient. ये आज्ञाकारी था। And therefore God of his own self made a covenant that in blessing I will bless thee. इसलिए वो आज्ञाकारी था तो परमेश्वर ने खुद आके उससे प्रतिज्ञा किया कि अब मैं आशीष में आशीष दूंगा। He was obedient. वो आज्ञाकारी था। Because thou hast obeyed my voice.
क्योंकि तूने मेरे आवाज को आज्ञाकारी किया है। We should be those who would be able to obey His voice. हम उनमें से हो जो परमेश्वर के आवाज पे आज्ञाकारी हो। Let us learn to listen to His voice. हम सीखे कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनना है। If we have to learn to listen to His voice, we need to read the Word of God. अगर हम परमेश्वर की आवाज को कैसा सुनना है हम सीखना चाहते हैं तो अनिवार्य है कि हम प्रभु के वचन पढ़ें। We need to call upon Him हम उनके पुकारे and we need to worship Him. और उसकी आराधना उपासना We करें need to be in fellowship with God's people. और परमेश्वर के जन के साथ हम संगति में रहे। Whatever little we could learn from today's meditation, आज के अध्ययन से हम थोड़ा भी जितना भी हम सीख पाए, let us learn that the society is watching us. हम ये जान पाए कि हमारी जो सोसाइटी है हमारे बाहर के लोग हमें देख रहे हैं। You may not watch them, आप हो सकते हैं उनको ना देखें, but they are all watching you. सब लोग आपको देख रहे हैं। What time you are leaving home? आप घर से कितने बजे निकल रहे हैं, What time you are coming back? कितने बजे वापस आ रहे हैं, What are you doing? क्या कुछ आप कर रहे हैं, Everything is being watched. सब कुछ आपका देखा जा रहा है। But if they see you going to the house of God जब आपको परमेश्वर के घर में जाते हुए देखेंगे on a regular basis, और हर सप्ताह ही आपको जाते देखेंगे, all through the year, पूरे साल आपको जाते देखेंगे, summer or winter, गर्मी में हो सर्दी में हो or whether it is rainy season, और बारिश हो रही हो, still you are coming to the house of God. फिर भी आप लोग के भवन में आ रहे हैं The society is watching. और सोसाइटी आपको देख रहा The है, world is watching. संसार आपको देख रहा है Satan is trembling. और शैतान कांप रहा है। This is truly a child of God. ये सच में परमेश्वर का जन है। Let us learn to practice what we have learned. इसलिए जो हमने सीखा है उसको हम जीवन में संचालन करें, उसको करें। Pray for me and my family मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना that करें we may also practice it ताकि हम भी इसके तहत चलें। by just preaching. सिर्फ वचन देने से ही We should not be left out. हम नहीं छोड़े ना जाएं। We should also be able to practice it as much as we preach. जितना हम प्रचार करते हैं, वचन देते हैं, उतना ही हम उस राह पे चलें। Let us all pray for each other. एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना किया करें। May the Lord bless His word. प्रभु इस वचन में आशीष। भाई बोआज से निवेदन है कि प्रार्थना करें।